friends, we have started chapter number 3 regarding electric current. Now in that we first discussed about battery. Battery was the reason behind generation of electric current. Now today we'll see how the electric current generates. So electric current is always a motion of charges in a conductor. So let's first see what is a conductor. Now by word conductor we normally refer to it as a metal. मेटल में खासियत है कि इट हैज 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ईच मेटल एटम हैज 1, 2 और 3 valence electrons. These are 1, 2, 3 or 1, 2 or 3 valence electrons are in the outermost orbit. So in a metal, if this is the metal, then the atoms are fixed at their respective positions. As being solid, they have a perfect periodic arrangement, fixed at their respective positions. Atoms do not move from their positions. The electrons revolving around the atom, the valence electrons revolving around the atoms, these valence electrons are loosely bound with their parent nucleus, and hence they leave their parent and start moving around another atom. From there they move to another atom, and so on. These valence electrons are free to move anywhere in the metal, but they do not go out of the metal by themselves. So we find that these valence electrons of the metal atoms, as being loosely bound with their parent nucleus, they are free to move anywhere inside the atom, anywhere inside the matter. So in that sense, these valence electrons are called free electrons. So in metals, there are usually free electrons, but we put this free word in double quotes. Why? Because these electrons are free to move anywhere inside the metal. They cannot come out of the metal by themselves. They can move freely anywhere inside the metal, but they cannot come out of the metal. Okay, so in that sense, this freedom is restricted freedom. It is something like once you enter in your school compound, you pass through the gate, you enter the school. After that, till your school is over, you can move anywhere in the campus, but you cannot go out of the campus without permission. Okay, you are free to move anywhere. You can go to your class, you can go to your friend's class, you can even go to a senior's class or a junior's class, you can approach the staff room, you can go to the principal's room. You are free to move anywhere inside the campus, but you cannot go out of the campus without permission. Same way, free electrons also behave in the same manner. They can move anywhere inside the metal, but they cannot go out of the metal. Now, every valence electron of every atom are usually free. So there are lots of free electrons moving in the conductor. Now these free electrons have their motion is usually random. They perform random motion. It is something like gas molecule. They move randomly. They move anywhere in the. It's not fixed that they will follow a particular pattern or follow a particular rule during the motion. These free electrons have random motion, and random motion means what? जितने electrons हो गए उतने electrons हो गए everywhere. All the electrons are moving randomly everywhere. This arrangement can be compared to a gas filled in a container. Gas filled container. In gas filled container, we have already studied in 11th standard that there are molecules, gas molecules, which move randomly. There are large number of molecules, they move randomly, so the gas occupies the entire container. Density is uniform. Similarly, here also, electrons revolve. Random motion is such that the density of electrons in the entire conductor remains uniform. What will happen about the conductor? Will it be positively charged or negatively charged? So the thing is that the atoms have lost their free electrons. These atoms have lost their free electrons. उनका free electron lose कर दिया, यानी ये positive ion हो गया. So metal atom is usually a positive ion, and the electrons are revolving here and there. So what can you say about the charge of this conductor? Will it be positive or negative or neutral? ये फिर एक क्वेश्चन जाता है. Every atom has lost the free valence electrons, so they are positive ions. Electrons are moving here and there, negative ions. What about the conductor? The conductor is basically neutral. Why? जितने electrons निकले उतने positive ion form हुए. Whatever amount of electrons have moved out, the equal amount of positive ions have been formed. पहले भी neutral था, अभी भी neutral है. Okay, so conductor is in charge wise it is neutral, but it has an arrangement this way that each of the atom is a positive ion because it has lost its own valence electrons, which is moving anywhere else.
अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो किसी और का इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके आसपास भी घूम रहा होगा, यानी ऑल आर सैचुरेटेड, पर खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, खुद का इलेक्ट्रॉन कहीं और किसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इट इज समथिंग सिमिलर टू अवर डेली लाइफ। हमारे सोशल लाइफ में हमारा कैसा है कि हम अपने पेरेंट्स के पास कम एंड चाचा मामा, अपने डैड के साथ कम और चाचा मामा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई ओकेशन में गए हैं वहाँ पर तो पापा के साथ पहुँचे वहाँ पर, फिर बाद में पापा को छोड़ के हम लोग चाचा या मामा के साथ घूमते हैं, क्योंकि चाचा और मामा कैसे हैं, चल भतीजे घूम के आते हैं, आटा मार खाते हैं, तो बोलेंगे चाचा आइसक्रीम खाना है, चलो आटा मार खाते, तो मामा बोलेंगे चलो चलो वांधा नहीं। तो वी फील कंफर्टेबल विद मामा और चाचा, बट नॉट विद अवर डैड। क्योंकि डैड को बोलेंगे आइसक्रीम खाना, तो बोलेंगे चल आवा दे, हम बैठ जाए शांति से, आइसक्रीम खाना, अभी तो ये मैरिज चल रहा है यहाँ पे, तो आइसक्रीम की बातें करते, बैठ जा चुप जाओ, झिड़क देते हैं। फाइन, हम अपने चाचा मामा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू अस। अब मामा का लड़का हो क्या बोलेगा, मारो मेरा बाप तो है ही ऐसा, छोड़ नहीं यार। हम बोलेंगे नहीं मामा इज वेरी गुड, वो बोलेगा नहीं रे छोड़, मेरे को पता है मैं रहता हूँ साथ में, तेरे पापा ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक का मामा, एक का बेटा दूसरे के साथ, दूसरे का बेटा पहले के साथ, ऐसा चलता है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर पेरेंट न्यूक्लियस एंड मूव अराउंड सम अदर न्यूक्लियस, व्हाइल द सेम पेरेंट न्यूक्लियस विल हैव सम अदर इलेक्ट्रॉन। वो किसी और का मामा या चाचा होगा तो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। So that is what is the case. So free electron move randomly. In overall, we can say that in the metal, the valence electrons of metal atoms, yani outermost orbit के electrons, they become free and perform random motion. They are moving randomly. हाँ, limitation is they cannot come out of this metal by themselves. पर कैसे आएगा उसमें हमें नहीं जाना है, हमें तो यहाँ जो random motion चले उसी को पकड़ना है। तो किसी भी कंडक्टर की बात करो तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। दिस व्हाट इज द सिचुएशन इन केस ऑफ कंडक्टर, एंड ये रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर वन हु विल गिव अस इलेक्ट्रिक करंट, जो हम अभी थोड़ी देर में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एक और है, एक और अरेंजमेंट है जिसके अंदर चार्जेस का मोशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इन इलेक्ट्रोलाइट्स यू माइट बी नोइंग दैट इलेक्ट्रोलाइट यानी का इट्स अ सॉल्यूशन, एंड इस सॉल्यूशन में द suppose it is NaCl solution, it is NaCl solution, sodium chloride. When the solution in water is added into it, then Na plus and Cl minus get separated, yani a positive ion and a negative ion is formed, and this positive and negative ion tend to move towards the rod, two rods, electrodes, and thus forming motion of ions, yani के charges inside the solution, which may give rise to conduct current, right? तो electrolyte में कुछ ऐसा है, ionic formation happens and that helps in conduction, जबकि कंडक्टर में these free electrons are one who are responsible for conduction. In this chapter, our main purpose is to study the current in conductor. This will take later on, or you are dealing with this in chemistry more. Okay, so let's focus and enter our hero, electric current. अगला हम चल रहे हैं आगे, कंडक्टर में करंट कैसे फॉर्म होता है। Now let's see how electric current is generated in a conductor. Suppose this is a conductor. You will think that this में thick conductor, इतने मोटे मोटे मेटल वायर होते हैं क्या? No, it's a magnified view of a wire, conducting wire. Now in this wire, atoms are there and electrons are moving randomly. Now electrons are moving randomly, तो हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें। Suppose this is an electron, it starts from point A and moves randomly. चलो suppose यूं गया, फिर यहाँ से यूं आया, random motion है, फिर यहाँ से यूं मुड़ गया, suppose point B पे पहुंचा, and while reaching at point B it took time t. तो इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया ऐसे, reach to point B in time t. Just we are talking about one electron. That one electron is moving randomly, moves from A to B. तो अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन ले लें and we observe at the cross section, ये क्रॉस सेक्शन पे अगर ऑब्जर्व करें तो one electron traveled from left side to right side. At the cross section, one electron traveled from left to right side, यानी कि one negative charge traveled from left to right. Okay, so is it that this is the only electron which will be moving? नहीं, all the electrons are moving randomly. तो जितने electrons left से right गए उतने electrons right से left भी जाएंगे. Whatever number of electrons are moving from left to right, same way right to left. Why? Because it's a random motion. Random motion का meaning क्या है? Random motion means you can't predict which side it will be moving. यानी all probability of moving in all directions same. अब probability of moving in all directions से मतलब क्या हुआ? जितने लेफ्ट से जाएंगे उतने राइट से लेफ्ट भी जाएंगे। तो वट एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी जितना चार्ज लेफ्ट से राइट गया उतना ही चार्ज राइट से लेफ्ट आएगा।
यानी क्रॉस सेक्शन पे बैठे हम लोग अगर ध्यान दे रहे हैं कि कितना चार्ज पास हुआ यहाँ से, तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव यूं गया उतना ही नेगेटिव यूं आया, तो सारा हिसाब जीरो कैंसिल हो गया. सो वी फाइंड दैट नेट चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इज जीरो. तो नेट चार्ज जीरो पास हो रहा है, नो करंट अवेलेबल. ये हुआ. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर था उसमें देखा कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एग्जाम कर लिया, देन वी टॉक अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर एंड वी फाउंड दैट नेट चार्ज पासिंग इज जीरो. नाउ व्हाट वी डू इज लेट अस कनेक्ट अ बैटरी टू दिस कंडक्टर. हम कनेक्टिंग द बैटरी का पॉजिटिव इस लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा. नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड ऑन द राइट साइड, so there will be a negative potential on the right side, and here it is positive potential, here negative potential, therefore a uniform electric field will be formed between the two ends of the conductor. A uniform electric field will be coming into existence across two ends of the conductor. अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, कंडक्टर कहाँ गया, तो इसको थोड़ा डार्क बताते हैं. In exam we are not allowed to use colored pencils, therefore we have to use the same black pencil and make this dark so that we can show that this is the boundary of the conductor. ये कंडक्टर हो गया एंड बाकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस में क्या होगा, what will happen due to this uniform electric field? So electric field we know that it's always directed from positive negative. Electric field is always directed from positive negative. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया हो तो किस तरफ जाएगा, what will be the tendency of this negative charge electron to move? Obviously being negative it will be traveling towards positive charge. It love to move towards positive charge, not a negative. यानी कि electron has a tendency to move in direction opposite to the electric field. Electron has a tendency to move in direction opposite to the electric field. अब यहाँ पे electric field यूं है, electron भी यूं जा रहा है, तो गड़बड़ हो गई. What will happen now due to in presence of electric field? In presence of electric field, we find that the electrons will find tough to move in this direction. यानी वो इस तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ से इस तरफ चले जाएंगे, नहीं, रैंडम मोशन विल कंटिन्यू. ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, नहीं, रैंडम मोशन विल बी कंटिन्यूड, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर पाथ विल बी स्लाइटली डेविएटेड. यानी कैसा होगा, मूविंग तो यूं चल रहा है और पाथ को जैसा डेविएट हो जाएगा, यानी rather than coming to B they will come to B dash. Absence of electric field में they were traveling along AB, but in presence of electric field now their path will be AB dash, slightly deviated towards the left, यानी in direction opposite the electric field. यानी क्या बोलेंगे कि within time t they suffered a displacement of BB dash. In presence of electric field, path of electron which was AB now becomes AB dash. Therefore, a displacement of BB dash takes place in time t. ये टाइम t कहाँ से है, पहले से फिक्स किया था, टाइम t में ऑब्जर्व करना है इसको, तो विद इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट BB डैश इतना हो गया. नाउ डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, तो डेफिनेटली विल गेट अ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट करते हैं VD से. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी क्या, तो वर्ड ड्रिफ्ट को याद करो, टेक अ लिटरल मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट. होप यू नो व्हाट इज ड्रिफ्ट, व्हाट डज ड्रिफ्ट मींस. ड्रिफ्ट यानी क्या, तो हिंदी में बोले तो बहना. बहना मतलब नदी, रिवर इज फ्लोइंग एंड यू फेल इनटू इट. ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर यू मूव स्लाइटली टुवर्ड, यू आर मूविंग, यू वांट टू मूव अगेंस्ट द करंट और परपेंडिकुलर टू करंट, बट वाटर विल टेक यू दिस वे, वो साथ में तुमको थोड़ा बहा के आगे ले लेगी. ओके, सो दैट इज हैपनिंग व्हाई, बिकॉज द फ्लो इज ऑलरेडी अकरिंग. तो फ्लो के साथ में थोड़ा तुम बह जाओगे आगे, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्टिंग. सो हियर आल्सो व्हाट हैपेंस दैट electron will continue its random motion, but due to presence of electric field slightly shifted this way, जिसको हम लोग more proper word लेंगे drift. तो electrons get drifted in direction opposite to the electric field. अपना path continue करेगा, but due to electric field थोड़ा left तरफ shift हो जाएगा path. This is what happens when electric field is applied. Now ये drift velocity के कारण क्या होगा, अब अगर ये क्रॉस सेक्शन पे हम बैठे हैं नजर डाल के, तो अब क्या देखने को मिलेगा, we find that the number of electrons moving from left to right will be less than those moving from right to left. क्यों,
इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी राइट से लेफ्ट की तरफ है, इससे मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये अनइवन नंबर हो गया तो नेट चार्ज पासिंग होगा, देयरफॉर वी फाइंड दैट अ नेट चार्ज passes through cross section। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, रैंडम मोशन था, जितने इलेक्ट्रॉन यूं गए उतने इलेक्ट्रॉन यूं आए, जितना नेगेटिव चार्ज यूं गया उतना नेगेटिव चार्ज यूं आया, नेट वाज जीरो। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी फाइंड इज दैट ड्रिफ्टिंग अकर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स लाइकली राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लेस विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ज्यादा यूं जाएंगे कम यूं जाएंगे तो नेट वैल्यू पास हुआ, a net charge passes and such a flow of net charge through the conductor, such a flow of net charge through the conductor is termed as electric current। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? such a flow of net charge through any cross section of the conductor is called electric current। तो यहाँ पे हमारा हीरो इंट्रोड्यूस हो गया। फिर से क्वेश्चन क्या उठा है, इलेक्ट्रिक करंट राइज हुआ, क्यों? क्योंकि नेट चार्ज पास हुआ। नेट चार्ज क्यों पास हुआ? क्योंकि ड्रिफ्ट आया। ड्रिफ्ट क्यों आया? ड्रिफ्ट कब आया? जब ये डिस्प्लेसमेंट dp डैश जितना हुआ इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। डिस्प्लेसमेंट क्यों हो गया? b के बदले b डैश पे क्यों आया? क्योंकि पाथ चेंज हो गया, ab के बदले ab डैश हो गया। व्हाई डिड पाथ चेंज? व्हाई डिड पाथ चेंज? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? बैटरी के कारण। तो सारी फसाद का जड़ बैटरी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ बैटरी। क्योंकि अगर बैटरी ना होती, अगर ये बैटरी नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो पाथ चेंज नहीं होता, पाथ चेंज नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता तो ड्रिफ्ट नहीं होता, ड्रिफ्ट नहीं होता तो नेट चार्ज पास होता, नेट चार्ज पास नहीं होता तो इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। इसीलिए पहला स्टेटमेंट था बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम सर्किट में बैटरी लगाओ और ये काम चालू हो जाएगा, नेट चार्ज पास। यानी मतलब क्या हुआ कि इफ अ कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड आइसोलेटेड, नो बैटरी कनेक्टेड, तो भी इसमें चार्ज का मोशन तो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और वो मोशन कैसे? रैंडम है, इन एब्सेंस। यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये बात आगे चल रही थी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी फाइंड दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडम एंड हेंस नेट चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन जीरो। इसलिए अगर वायर पड़ा है यूं बैटरी नहीं लगाई है तो भी उसमें मोशन ऑफ चार्ज तो है, बट द नेट चार्ज ऑफ द नेट मोशन इज जीरो, नेट चार्ज पासिंग इज जीरो, इसलिए कंडक्टर में करंट नहीं मिलता। बट एज सून एज यू कनेक्ट द बैटरी, बैटरी गिव्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड and due to that electric field the motion of the electrons do not remain random, यानी no longer the motion is random। अब random motion नहीं रहा तो obvious है there will be a guided motion, and guided motion के कारण you find a net charge pass through the conductor and that gives the arising of current। तो electric current is generated due to this reason। फिर से एक बार देखें, इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि नेट चार्ज पास हुआ क्रॉस सेक्शन पे। नेट चार्ज क्यों पास हुआ? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली। ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्यों मिली? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पाथ चेंज हुआ। पाथ चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों राइज? बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो इट इज अ बैटरी हु टेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू राइज। बैटरी नहीं तो करंट नहीं, वी नो वेरी वेल, बैटरी नहीं तो करंट नहीं, तो दैट इज द रीजन। तुम बोलोगे हमारे घर में तो कहाँ बैटरियां लगाते हैं, तो वो टॉरेंट पावर का जो वायर दो आते हैं हमारे पास, दोज टू वायर सप्लाई इज द बैटरी। वो कहीं और बैटरी लगी है, उधर से सप्लाई आ रहा है हमारा, एंड वो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देता है। क्लियर? सो दिस द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? नेट चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। चलो इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन सपोज इन टाइम टी चार्ज क्यू पासेस। नेट चार्ज कितना पास हुआ? क्यू। इन टाइम टी सपोज नेट चार्ज पासिंग इज क्यू, तो एक सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? तो एक सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? तो उसको बोलेंगे क्यू बाई टी, and this q by t is called electric current। Formal definition of electric current, what is it? Amount of charge passing through any cross section of a conductor per unit time। amount of charge passing through any cross section of a conductor per unit time is called electric current passing to the conductor। It's called electric current passing to the conductor। यानी कंडक्टर किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितना नेट चार्ज पास होता है पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का यूनिट कूलम है, टाइम का सेकंड है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एम्पियर तो आप बोलोगे एसआई सिस्टम में था, फंडामेंटल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट था, उसका यूनिट एम्पियर था, तो एम्पियर इज डेफिनेटली फंडामेंटल यूनिट। इससे इसका डायमेंशन इक्वेशन क्या बनेगा? m0 l0 t0 a1, a फॉर एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्यों अराइज हुआ,
वो देख लिया हमने, अराइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इट इज, डेफिनेशन देख लिया। अब मान लो क्रॉस सेक्शन में चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, छोटे से क्रॉस सेक्शन का छोटा सा चार्ज लेके चल सकते हैं। तो आई उस केस में क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, छोटे टाइम में छोटा चार्ज ले लो। फिर ये हो गया रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दिस आल्सो यू कैन गेट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टॉपिक बुक में कहीं नहीं दिया डायरेक्टली, पर इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है रेगुलरली। ओके, सो देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट। You'll search in the textbook, you'll not get this topic anywhere. I have mentioned it in a box in the notes. What it is, देखो जाना पहचाना वर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इसको, चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के irrespective of any phenomenon occurring, the total charge in a closed container always remains constant. अब यहाँ पे वैसे ही कुछ है, पर ये करंट को ध्यान में रखें, मोशन ऑफ चार्ज को ध्यान में रखें। सपोज एक कंडक्टर है, आगे वायर है, ये पीछे वायर है, हमने इतने पार्ट को हाईलाइट किया, इसलिए इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। नाउ इन दिस सपोज अ करंट आई इज पासिंग, करंट आई पासिंग मतलब व्हाट, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग टू द कंडक्टर। खास ध्यान रखें, वायर है, वायर है कंटिन्यूसली, इतने पार्ट को वी हैव मैग्नीफाइड एंड वी आर लुकिंग टू इट। करंट आई पासिंग थ्रू दिस वायर, तो यहाँ सपोज करते हैं 3 क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 3, सपोजिंग एनी 3 क्रॉस सेक्शंस। अब करंट आई पास हो रहा है मतलब क्या हुआ, चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट। सपोज थ्रू क्रॉस सेक्शन 1 चार्ज Q1 इज पासिंग इन टाइम t। सपोज थ्रू यानी चार्ज Q1 पास हो रहा है, सपोज थ्रू क्रॉस सेक्शन 2 चार्ज Q2 इज पासिंग इन टाइम t। सपोज थ्रू क्रॉस सेक्शन नंबर 3 चार्ज Q3 इज पासिंग इन टाइम t। यानी क्रॉस सेक्शन नंबर 1 में चार्ज Q1 पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शन नंबर 2 में चार्ज Q2 पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शन 3 में चार्ज Q3 पास हो रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर बोलते हैं, यानी थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन करंट इज ऑलवेज सेम। ऐसा नहीं बोलते करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन, याद होगा डेफिनेशन में लिया था, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम, यानी कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन नहीं, सब क्रॉस सेक्शन में सेम चार्ज सेम करंट पास होगा। नाउ यहाँ पे अगर करंट आई है तो यहाँ पे भी करंट आई होगा, यहाँ पे भी करंट आई होगा, तो वी गेट दैट बाय डेफिनेशन I equal to Q1 by T, I equal to Q2 by T and I equal to Q3 by T। T को लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, तो what we find is that therefore Q1 equal to Q2 equal to Q3। So what we can find here is whatever amount of charge is passing through cross section number 1, the same charge will pass through cross section number 2 and same charge will pass through cross section number 3। यानी कि amount of charge passing through every cross section is same। When electric current I is passing through the conductor, the amount of charge passing through every cross section is same। यानी कि कंडक्टर में अगर चार्ज कितना चार्ज एंटर हो रहा है जितने टाइम में, उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा। whatever electric charge enters the conductor in a given time interval, the same amount of charge exits the conductor in the same time interval। जितने टाइम में एंटर हुआ उतने टाइम में बाहर आएगा। ओके, मतलब अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, अंदर 50 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, कंडक्टर में 50 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से 5 एंटर हुए तो टोटल 55 हुआ, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 5 एंटर हुए, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बोले छठा कहाँ से है, अंदर पैदा हुआ था। इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई रिप्रोडक्शन फिनोमेनन हमने आज तक सुना नहीं है कि सब एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज बाइनरी फिशन एंड सेपरेट्स इनटू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड अ न्यू इलेक्ट्रॉन हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ऐसा कभी नहीं होता, यानी जितने गए उससे ज्यादा बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेदर प्रोड्यूस्ड। ना ही ऐसा हो सकता है कि 5 गए 4 बार आए, बोले 5वां कहाँ गया, अंदर मर गया, उसको दफन कर दिया अंदर, यानी चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, साथ में डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। एंड ऐसा भी नहीं होता कि 5 गए और 4 बार आए, बोले एक को यहाँ अच्छा लगा रह गया। चार्ज कैन नॉट स्टे बैक इन द कंडक्टर ऑल्सो। सो व्हाट वी फाइंड इज दैट 5 अगर एंटर हुए तो 5 को ही बाहर आना पड़ेगा। क्या सर ये 5 जो एंटर हुए उन्हीं को बाहर आना पड़ता है? नहीं, नॉट नेसेसरी। जो एंटर हुए उन्हीं को बाहर आना जरूरी नहीं है, पर जितने एंटर हुए उतनों को ही बाहर आना है। यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए, 50 और 5 55 हुए, out of that 5 moved out and so now again it's 50। so at that time in the conductor the number of amount of electric charge remains constant, conservation electric charge, जितने हैं उतने ही जाते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट कैसे देते हैं,
charge can neither be produced nor destroyed nor can it accumulate in the conductor. That is, the total charge in the conductor always remains constant. 5 एंटर हो तो 5 को बाहर निकलना है. Total charge in the conductor remains constant. That's the law of conservation of electric charge. तो सर हमको ये लॉ लिखने का नहीं, हमारी बुक में थर्ड चैप्टर में कोई लॉ नहीं दिया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर वाला ही स्टेटमेंट लिखेंगे अगर एग्जाम में पूछा हो तो. ये तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इसे यूज किया है. क्या कॉन्सेप्ट है इसका? स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या था? चार्ज इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड nor can it accumulate in the conductor. That is, the total charge in the conductor always remains constant. Total charge in the conductor always remains constant. मतलब क्या, इसको समझने का क्या हमें? It means whatever amount of charge enters the conductor in a given time interval, जितने टाइम में जितना चार्ज एंटर होगा, same amount of charge comes out from the conductor in the same time interval. In a given time interval, whatever charge enters, the equal amount of charge will come out also. यानी कि टोटल चार्ज इन द कंडक्टर ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. अब जो चार्ज गया वही बाहर है, जरूरी नहीं है ये 5 अंदर गए दूसरे कोई 5 बाहर आ गए, पर 5 अंदर गए तो 5 को बाहर आना कंपलसरी है. सो व्हाट डज दिस लॉ इंप्लाई? कि इन अ कंडक्टर द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. जो करंट में चार्ज फ्लो होकर आते हैं उतने चार्ज को दूसरी बार बाहर निकालना पड़ता है. अब अगर आप इसमें क्वेश्चन यह राइज होता है कि मान लो कंडक्टर कुछ ऐसा है, एक साइड से पतला है दूसरी साइड से मोटा है, तो फिर क्या होगा? जितना करंट यहाँ से एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर आएगा. यहाँ तो छोटा क्रॉस सेक्शन है, लेस इलेक्ट्रॉन्स विल पास, बड़ा क्रॉस है, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल पास. अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आए कहाँ से? प्रोड्यूस होते नहीं, जितने आए उससे ज्यादा निकलेंगे तो क्या होगा? कहाँ से आए? बोले सर यहाँ कम आए और यहाँ ज्यादा आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर है क्या? तो दैट्स नॉट पॉसिबल. मतलब क्या हुआ कि वेदर द क्रॉस सेक्शन इज नैरो और ब्रॉड, वेदर द क्रॉस सेक्शन इज नैरो और ब्रॉड, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग ऑलवेज रिमेंस सेम इन अ गिवन टाइम इंटरवल. तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज एंटर होता है उतना ही चार्ज यहाँ से एग्जिट करेगा, भले क्रॉस सेक्शन नैरो और स्मॉल, नैरो और ब्रॉड. क्लियर अबाउट दिस? यानी कि डज नॉट, करंट का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग एंड वो कांस्टेंट रहता है. ओके, सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज. हमारे लिए ये पॉइंट उसका कंपल्सरी है जानना कि व्हाटएवर अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर्स द कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिट्स whether the cross section is narrow or broad. That's regarding conservation of electric charge.